nodes. Okay, each node contain two parts. First is data part and second is the address of next node. Suppose this is a particular first node, its address is 1001. In computer memory, all the elements stored in a particular address. Okay, this is a second node, 1002. This is a third node. Okay, we have three nodes. Last node will be null. Null means there will be no any another node, so this is a particular terminal point. Okay, this is a particular second node 20 and third node 20 and 30. Okay, this is a particular address, so this is second node. ये आपके पास क्या है, next part. Next means address of next one. Address of next one is 1002. Okay, and address of 3 नोड का एड्रेस आपके पास कहाँ पे स्टोर होगा, इसके 2 में. Okay, we have 3 nodes and start node contain the address of first node 1001. Okay, जो हमारी start node है, start node contain the address of first node. Okay, we have 3 particular nodes. Singly linked list contain particular list in a one way. We can't move back side. Okay, these are particular nodes. You have done the particular concept. Understood? Hello? Yes, ma'am. आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है बताइए. यस, एनीवन कैन टेल मी? अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया सिंगल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट बताओ क्या होता है. व्हाट इज सिंगल लिंक लिस्ट? Every single place contain address which is connected with the other second address, and last place is null which help to terminate the list. Yes. And we can't move backside. In singly linked list, we have only particular two parts. Each node contain two parts. All the particular nodes connected with each other. Okay. First is the data part and second is the address of next node. Okay. We have 3 nodes. Last वाली node आपकी क्या होती है? null. Okay. बस आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर जो फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड कंटेन द एड्रेस इन ए स्टार्ट नोड. स्टार्ट नोड में आपको एड्रेस कंटेन करना होता है. ठीक है, फर्स्ट नोड का. आफ्टर दैट ऑल द पर्टिकुलर नोड कनेक्टेड विद ईच अदर एड्रेस ही स्टोर होगा नेक्स्ट नोड. ठीक है, वी हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस. Okay, we have done the concept of operations on singly linked list. Creation, insertion at the beginning, insertion at the beginning, insertion at the end and between. ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू इंसर्ट ए नोड एट बिगिनिंग पॉइंट. आपने एंड में कैसे इंसर्ट करना है, बीच में कैसे एक नोड इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है एक नोड स्टार्टिंग से, एंड से एंड बीच में से. ठीक है, अब बताइए, ये वाला मैंने सारा करवा दिया आपको लास्ट टाइम. ठीक है, लास्ट टाइम वी हैव डन दिस पर्टिकुलर operations on singly linked list. We'll move on. Second list is doubly linked list. अब doubly linked list का concept क्या होता है? We have seen in singly linked list we can traverse only one direction because each node has address of next only. एक एक जो particular node है ना उसके अंदर address होता है किसका? next node का. ठीक है, तो वी कैन से दिस इज ए पर्टिकुलर वन डायरेक्शन. आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हो, एक ही डायरेक्शन में आप ट्रेवर्स कर सकते हो, वापस नहीं आ सकते इस पर्टिकुलर. दिस इज ए ड्रॉबैक ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट कि सिर्फ आप जा सकते हो. देखो आपने देखा कि जो आपकी सिंगली लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट है ना, वी कैन ओनली दिस नोड एड्रेस द स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. सिर्फ आप जा सकते हो, यहाँ से वापिस नहीं आ सकते. वी कांट कम बैक. ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर ड्रॉबैक.
we implement another data structure doubly linked list. In this each node has address of previous and next node also. Okay, अब ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे. Each node contain the particular 3 parts. फर्स्ट वाले में क्या था, 2 पार्ट. एक पर्टिकुलर क्या था, वैल्यू, और दूसरी क्या था आपकी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. अब इस वाले में आपके पास क्या है, आपका फर्स्ट वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये प्रीवियस की नोड का इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा, और ये आपके पास होगा नेक्स्ट का एड्रेस. ठीक है, दोनों तरफ से आपकी नोड कनेक्टेड है, और बीच में आपका क्या है, डेटा पार्ट. ओके, अब एग्जांपल देखिएगा. आपको मैं बता रही हूँ डबली लिंक लिस्ट. डबली लिंक लिस्ट. अब डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, doubly linked list is a concept of each node contain 3 particular parts. देखो ये पर्टिकुलर एक नोड है. ओके, इसके 2 पार्ट्स हैं. अपनी कॉपी में प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ईच एंड एवरीथिंग. आपको विद डायग्राम शो करना होता है. ओके, आपको इसका एल्गो लिखना होगा. हाउ टू इंसर्ट ए नोड, how to insert a node at the end, at the last, and between all the particular terms you have defined. First of all, you have to understand what is singly linked list. ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना पहले कि डबली लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट क्या है. ठीक है, अब देखो ये आपके पास क्या है, पर्टिकुलर 3 नोड्स. फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, डेटा पार्ट. डेटा पार्ट इसमें क्या होता है, सेंटर में ये हमारे पास होता है डेटा पार्ट. ठीक है, फर्स्ट आपके पास क्या है, 10 नोड. सेकंड आपके पास क्या है, आपके पास 20. दिस इज ए पर्टिकुलर 20 नोड एंड दिस इज ए पर्टिकुलर 30. ओके, आपके पास लास्ट वाली नोड क्या होती है, नल. दिस इज ए पर्टिकुलर नल पॉइंट. ओके, एंड फर्स्ट नोड ये प्रीवियस नोड है. प्रीवियस नोड आपके पास क्या होती है, नल. प्रीवियस का मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट नोड का प्रीवियस कोई है ही नहीं तो वो नल होगा. ठीक है, अब सपोज करो ये पर्टिकुलर नोड है, इसका एड्रेस है 1001. ओके, कुछ भी हो सकता है, 2000 ले लेते हैं, इसका एड्रेस 2000 है, इसका एड्रेस है 3000. ठीक है, अब ये दोनों तरफ से लिंक कंटेन करेगा. जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज ए पर्टिकुलर नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन होगा. नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, 2000, एंड दिस इज ए पर्टिकुलर प्रीवियस नोड. प्रीवियस नोड का एड्रेस क्या है आपका, 1001. Okay, it will store the address of previous node, and this is a particular store the address of next 3000, and ये आपके पास क्या एड्रेस कंटेन करेगा, 2000. ओके, अब देखो दोनों तरफ से आपके पास वर्क हो रहा है. इसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन हो रही है नेक्स्ट की, और यहाँ पे प्रीवियस की. नेक्स्ट की, प्रीवियस की, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा लिंक, डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है. वी कैन ऑल्सो कॉल 2-वे लिंक लिस्ट. 2-वे का मतलब आप जा सकते हो, वापस भी आ सकते हो कम दर. स्टार्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड. जो हमारी फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा स्टार्ट में कंटेन होगा. ठीक है, ये पूरा पर्टिकुलर चेन की फॉर्म में वर्क करता है. ये आपके पास है पर्टिकुलर 3 नोड्स. ओके, सबको क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट, डब्ल्यू में क्या होता है. यस, बताइए, सबको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट. यस मैम. सिंगली का कॉन्सेप्ट, डबली का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया. यस मैम. हाँ जी, हाँ बताइए बच्चे, आपको सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट ये मैंने आपको बताया. अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको. एनी डाउट. देखिए, यस, आपके पास यहाँ पे देखो ये डायग्राम है. आपके पास यहाँ पे डायग्राम है 1 2 3. ठीक है, आपके पास नल का मीनिंग यहाँ पे क्या है, प्रीवियस. प्रीवियस नोड का एड्रेस आपके पास होगा यहाँ पे नल. ठीक है, यहाँ पे आपके पास लास्ट वाली नोड का एड्रेस यहाँ पे नल होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लास्ट नोड कोई भी नहीं है. लास्ट नोड यही नोड है तो नल स्टोर होगा. बाकी एज इट इज आपके पास नेक्स्ट का एड्रेस, प्रीवियस का एड्रेस, नेक्स्ट का प्रीवियस का. ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट आपके पास क्या आते हैं, ऑपरेशंस. ऑपरेशंस में फर्स्ट क्या आता है, क्रिएशन, इंसर्शन. इंसर्ट करनी है आपको नोड एट द बिगिनिंग, एट द एंड, एट बिटवीन.
आपको नोड डिलीट करनी है, डिलीट जैसे आपको करना है बिगिनिंग, एंड और बिटवीन। क्रिएशन, देखो क्रिएशन का मतलब क्या होता है, आपको एक नोड बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक ए नोड, ठीक है। जब आप एक पर्टिकुलर नोड आप बनाते हो तो आपको सबसे पहले पॉइंट क्या ध्यान रखना होता है। देखो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक नोड बनाओगे। दिस इज ए पर्टिकुलर नोड, this is a particular data part, okay, set the name, this is a temp is a particular temporary node, ठीक है। आप मेंशन करोगे temp info equal to data, temp next equal to null, because this is a particular first node and this is a last node, ये मेरी पहली और लास्ट नोड है। तो आपने इसका temp next equal to null कर दिया, temp का previous भी आपने null कर दिया। यहाँ पे previous आएगा, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिस इज ए पर्टिकुलर प्रीवियस पार्ट, ये आपका नेक्स्ट नहीं है, ये टेम्प का प्रीवियस है, कि दोनों को आपने नल बनाना है, ठीक है। टेम्प प्रीवियस इक्वल टू नल और टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू नल। स्टार्ट इक्वल टू टेम्प, इस पर्टिकुलर नोड को आप स्टार्ट से अटैच करोगे, दिस इज ए क्रिएशन, ठीक है। आपने प्रोग्राम बनाना हो सी लैंग्वेज के अंदर, आप कैसे मेंशन करोगे, टाइप दैट स्ट्रक्ट नोड, उसका एक नंबर लोगे। स्टार्ट, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप यूज करते हो स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट इन सिंगली लिंक लिस्ट। जस्ट वी हैव टू कॉन्सेप्ट्स, आपको नंबर लेना है एंड स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट लेना है। लेकिन आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आपका प्रीवियस नोड का भी एड्रेस कंटेन होगा, सो यू हैव टू मेक ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर प्रीवियस आल्सो, ओके। आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट ए नोड, यू हैव टू गिवन द नेम ऑफ नोड, ठीक है। ये आपके पास क्या है, क्रिएशन, कि आपको एक नोड बनानी है। अब जब आप इसके अंदर नोड आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, कहाँ पे, बिगिनिंग में। बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको सिंगली का कॉन्सेप्ट बताया था, कि आपको इंसर्ट कैसे करना है, पर्टिकुलर नोड को आप इंसर्ट करोगे बिगिनिंग में। ये आप नोट डाउन कर लो, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपका है इंसर्ट एट बिगिनिंग। बिगिनिंग में एक नोड आपको इंसर्ट करनी है, उसका प्रॉपर वे में आप एल्गो लिखोगे, ठीक है। इंसर्ट, सबसे पहले आपने क्या लिया, टेम्प इन्फो इक्वल टू डेटा, ठीक है। सबसे पहले आपने उसमें डेटा डाला, सपोज करो ये पर्टिकुलर मेरे पास 3 नोड्स हैं और 3 नोड्स हैं, और आपने एक नोड बिल्कुल स्टार्टिंग में 1000 से पहले इंसर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द टेम्प इन्फो इक्वल टू डेटा, ओके। आफ्टर दैट टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट। टेम्प नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे टेम्प नेक्स्ट क्या है, दिस इज टेम्प नेक्स्ट, ये आपका टेम्प नेक्स्ट है जो आपका यहाँ पे इससे कनेक्ट होगा, ओके, बिकॉज दिस इज अ पर्टिकुलर फर्स्ट नोड, ओके। सबसे पहले आपने इन्फो दे दिया, नेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट, इसका एड्रेस आपको स्टोर करना है, इसका एड्रेस है कहाँ पे, स्टार्ट के पास था पहले तो, है ना। तो स्टार्ट में से आपने एड्रेस लिया, क्या मेंशन किया, टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट, एंड दिस इज अ पर्टिकुलर फर्स्ट नोड, ओके। फर्स्ट नोड है तो यू हैव टू मेंशन टेम्प प्रीवियस इक्वल टू नल एंड स्टार्ट प्रीवियस, जो आपके पास स्टार्ट प्रीवियस है, दिस इज ए पर्टिकुलर स्टार्ट प्रीवियस, मतलब ये पर्टिकुलर स्टार्ट नोड थी, तो अभी आपका लिंक इससे नहीं हुआ, तो स्टार्ट तो यही हुई ना, तो स्टार्ट का प्रीवियस आपको इसका लिंक इससे करना है, इसका लिंक इससे करना है, दोनों तरफ से लिंक करना है। स्टार्ट प्रीवियस इक्वल टू शो द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, तो आपका 5000 जो है 500 यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब टेम्प आपकी यहाँ पे स्टोर हो गई, दोनों का आपने एड्रेस कंटेन करना है, और इसको आपने लिंक करना है किसके साथ, स्टार्ट के साथ। तो मैंने दे दिया स्टार्ट इक्वल टू टेम्प। समझ में आया कॉन्सेप्ट, यस आया या नहीं आया, अगर आ गया तो भी हाँ करो, नहीं आया तो ना करो, मैं आपको ताकि दोबारा बता पाऊं, बताइए यस और नो। और एक बार बताइए मैम। ओके, यस देखो ये आपकी एक सिंगल लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने आपको बताया कि मेरे को ना एक नोड इंसर्ट करनी है, कहाँ पे इंसर्ट करनी है बताइए, पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे इंसर्ट करनी है, पहले क्वेश्चन तो समझो, क्वेश्चन क्या है आपका, कि आपको एक नोड इंसर्ट करनी है कहाँ पे,
एट द बिगिनिंग एक बिगिनिंग। नोड मेरे को इंसर्ट करनी है बिगिनिंग में। तो सबसे पहले आप एक टेम्प लोगे, टेम्परेरी नोड बनाओगे। वन जो आपके पास यहाँ पे है 1001 से पहले एक नोड आपको इंसर्ट करनी है। ठीक है, पहले आपने टेम्प लिया, टेम्प का आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी। ठीक है, अब देखो इसका एड्रेस यहाँ पे आएगा क्योंकि दोनों तरफ से लिंक बनता है। ठीक है, इसका एड्रेस आपके पास यहाँ पे और इसका एड्रेस यहाँ पे, आपका दोनों तरफ से एड्रेस कंटेन होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या शो करना है, सबसे पहले आपने यहाँ दिया टेम्प इन्फो इक्वल टू डेटा, दिस इज ए पर्टिकुलर डेटा पार्ट, एंड टेम्प प्रीवियस इक्वल टू नल, टेम्प प्रीवियस इक्वल टू नल आपने दे दिया। एंड आपने इस ये जो पर्टिकुलर नल पार्ट था इसको हटा के यहाँ पे इसका एड्रेस कंटेन करना है, तो आपने टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू कर दिया स्टार्ट, टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट प्रीवियस इक्वल टू टेम्प कर दिया। दोनों तरफ से आपने लिंक स्टोर करवा दिया, इसका एड्रेस इसके अंदर, इसका एड्रेस इसके अंदर डलवा दिया। बस आपने इसको पर्टिकुलर इसके साथ जोड़ दिया कि आपकी ये हमारी फर्स्ट नोड बनेगी। यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इसके अंदर कि आपने ऐसे इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाना है। ठीक है, इंसर्ट एट बिगिनिंग, दोनों तरफ से आपने इसका लिंक इसके साथ करना है, इसका लिंक इसके साथ करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको और कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। इंसर्ट एट एंड, लास्ट में एक नोड ऐड करनी है, बिल्कुल लास्ट में जाते हुए आपको एक नोड इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो लास्ट में जाने के लिए पहले सबसे पहले आप लास्ट तक जाओगे। ठीक है, आपने क्यू नाम का वेरिएबल ले लिया, लास्ट तक आप जाओगे, फिर आपने एक नोड इंसर्ट करनी है, दोनों तरफ से लिंक बनाना है। ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, पूरा एल्गो लिखा हुआ है विद डायग्राम, आपको एक्सप्लेन करना है और एल्गो भी साथ में देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको इंसर्ट करना है एट बिटवीन, एक नोड आपको बीच में ऐड करनी है। जब आप बीच में ऐड करोगे तो आपको दोनों तरफ से कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, मान लो मेरे को ये वाली एक नोड इंसर्ट करनी है बीच में, तो आपने इसका लिंक इसके साथ करना है, इसका लिंक इसके साथ करना है, इस लिंक का इसके साथ, इसका, मतलब कि आपके फोर कनेक्शंस बनेंगे आपके। ठीक है, ऐसी आपको डिलीट करनी है, एक पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है। डिलीट एट बिगिनिंग, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग वाली एक नोड को रिमूव करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको लास्ट वाली नोड को रिमूव करना है। ठीक है, और बीच वाली नोड को, आपको एक बीच में जो बिटवीन नोड है, ओके, इसको आपने रिमूव करना है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ये आपके पास क्या आता है, इसके अंदर डबली लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, बस इसके अंदर आपके टू कनेक्शंस बनेंगे बोथ द साइड्स, क्योंकि वी हैव टू स्टोर द एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड एंड नेक्स्ट नोड। ओके ओके, next is the circular linked list. We have done two particular lists, single linked list and double linked list. Next we will move on circular linked list. Circular linked list क्या होती है, देखिए मैंने आपको बताया फर्स्ट वी हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट आपका क्या है, वन वे लिंक लिस्ट, वन वे, सिर्फ जाने का रास्ता है, वहां से वापस आने का रास्ता नहीं है। ठीक है, डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, वी हैव द कनेक्शन टू कनेक्शंस, तो आपके पास जो होगी डबल लिंक लिस्ट में क्या आपका डबल, आप जा भी सकते हो वापस भी आ सकते हो। ठीक है, अब आपके पास क्या आती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट आपकी क्या होती है, वन यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर सर्कुलर लिंक लिस्ट, इट हैज only small change in single linked list, link part of last node has null value. Okay, लास्ट वाली जो वैल्यू आपके पास लिंक पार्ट थी उसके अंदर था नल वैल्यू, इट रिप्रेजेंट द लास्ट नोड, बट हियर लिंक पार्ट पॉइंट टू द फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट and represent the linked list in circular way. Okay, these are particular nodes. Okay, we have 4 nodes, 10, 15, 22, 50, we have 4 nodes. Okay, अब देखिए पहले वाला जो आपका सिंगल लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट था, वी हैव डन, दिस इज अ पर्टिकुलर नोड, लास्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ, इन दिस सर्कुलर लिंक लिस्ट लास्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। अब देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, वी हैव 3 पर्टिकुलर नोड्स, देखिए ये आपके पास 3 नोड्स हैं।
देखिए आपके पास यहाँ पे 3 नोड्स हैं, ठीक है, एक सेकंड। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 3 नोड्स हैं। सपोज करो ये आपकी 10 है, ये 20 एंड 30, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या कॉन्सेप्ट था? यस, प्लीज टेल मी। Every node are connect with each other. हाँ, connected with each, all the particular node connected with each other and store Store the value, data and address एड्रेस and एंड carry डेटा। address. last value, store the address, null value। Null value. वाली में आपके पास क्या था? नल था। क्यों नल क्यों था? बोलो। For termination. वेरी गुड, फॉर टर्मिनेशन। अब देखिए इसके अंदर आपके पास नल नहीं है, यहाँ पे आपके पास नल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपका नल नहीं है क्योंकि जो आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपके पास नल नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? स्टोर द एड्रेस ऑफ, दिस इज ए पर्टिकुलर फर्स्ट नोड। एड्रेस क्या है आपका? सपोज 1000, 2000 एंड 3000, ठीक है। अब देखो ये आपके पास नोड्स हैं। 2000 सेम सब कुछ वही है, सिंगल लिंक लिस्ट वाला। अभी मैं कौन सी लिस्ट बता रही हूँ आपको? सर्कुलर। सर्कुलर क्या होती है? जो सर्कल की फॉर्म में आपकी वर्क करती है, ओके। अब आपके पास यहाँ पे 3000, स्टोर द एड्रेस ऑफ थर्ड नोड, सेकेंड नोड एंड लास्ट वाली नोड में नल नहीं होगा। लास्ट वाली नोड का एड्रेस आपका स्टोर होगा इन फर्स्ट नोड। लास्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, ओके। देखिए 1000 आपका स्टोर होगा, इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस आपके पास यहाँ स्टार्ट नहीं है, यहाँ पे लास्ट है। लास्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। दिस इज ए पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट, ओके। सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपका ये कॉन्सेप्ट होता है। एक पर्टिकुलर नोड के सेम, जैसे सिंगली में 2 पार्ट्स होते हैं, वैसे ही सेम 2 पार्ट्स हैं, बट वहां पे सिंगली के अंदर कॉन्सेप्ट था कि नल होती है और यहाँ पे स्टार्ट होता है। वन वे लिंक लिस्ट थी, बट ये वाली आपकी क्या है? सर्कल की फॉर्म में आपकी वर्क करती है। लास्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सेम इसके अंदर भी ऑपरेशंस हैं सिंगल लिंक लिस्ट के, जो मैंने आपको ऑपरेशंस बताए थे वैसे ही सेम इसके भी ऑपरेशंस हैं, ओके। Ma'am, I have one doubt. यस, मैम इस जैसे फर्स्ट में टर्मिनेट होने के लिए नल वैल्यू थी, तो इसमें मैम अगर सर्कुलर में एक दूसरे का एड्रेस ही कैरी करते रहेंगे तो फिर मैम टर्मिनेट नहीं हो पाएगी वैल्यू। नहीं टर्मिनेट होगी, इसके अंदर लास्ट के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं ना। आपका ये सर्कल की फॉर्म में वर्क करती है, बिल्कुल सही पॉइंट है कि आपका ये सर्कल की फॉर्म में रन करती है। तो लास्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। अब मेरे को फर्स्ट यस नोड मैम। पे आना है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि आप फर्स्ट में लास्ट में आ गए, तो आपके पास आप पहुंच गए लास्ट तक, ठीक है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखना होता है कि आप मूव कर रहे हो। देखो सर्कल की फॉर्म में आप इधर से इधर जा रहे हो, ठीक है। आपने ये पर्टिकुलर नोड को उठाना है, तो आपकी सर्चिंग जो होगी वो कहाँ से सर्चिंग होगी? इफ यू वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, यस, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, जो इसके अंदर भी सेम इंसर्शन डिलीशन सब कुछ होता है, ओके। सपोज यू ओके वांट मैम। टू इंसर्ट ए पर्टिकुलर नोड, यस। यस मैम। आपका जो पॉइंटर होगा ना, यहाँ से स्टार्ट होता है लास्ट से वो उठाएगा फर्स्ट का एड्रेस, चेन तो वही चलेगी आपकी, बट इसके अंदर आपका जो फर्स्ट लास्ट है, यहाँ पे स्टार्ट नहीं है, यहाँ पे लास्ट है। लास्ट में से पर्टिकुलर उठाएगा फर्स्ट का एड्रेस एंड शो द पर्टिकुलर नोट्स। बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। आप वी हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट। एनी डाउट? एनी डाउट बताइए, किसी को कोई डाउट है अभी तक? नो एनी डाउट? सबको सब कुछ क्लियर हो गया? Yes or no? Yes or no? We have done the concept of linked list. Okay, we have 3 particular linked list: singly, doubly, and circular linked list. This is a very, very, very important topic.
ओके, सिंगली जो आपका लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट है ना, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। ओके, कोई आंसर नहीं है अभी तक किसी का भी, मेरे पास सिर्फ एक आंसर आया है, यस। ओके, चलिए मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। मैम इसका यूज कहाँ है? All the particular examples we can use in live. ओके, लाइव वे में आप पर्टिकुलर, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, डबली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका, डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीटली आपका यूज होता है, पूरे रियल लाइफ में आप यूज करते हो। डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, जब भी पर्टिकुलर नोड्स आपको यूज करनी है डायनेमिकली, देन वी कैन यूज लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, जब भी पर्टिकुलर आपके पास जो लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हो, आपके पास लिस्ट फिक्स नहीं है, देन वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास फिक्स डेटा है, फिक्स पे आपको वर्क करना है, देन वी कैन यूज एरे, ठीक है। तो आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली अलग अलग चीजें आप यूज करोगे, डिफरेंट डिफरेंट वे से आप यूज करोगे, ठीक है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। डेटा स्ट्रक्चर ऐसी चीज है कि हर जगह यूज होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। ओके, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है जहाँ पे यूज नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आपका एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर सब जगह यूज होता है। जब आप पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग करते हो ना, प्रोग्रामिंग के अंदर तो ये सारी चीजें यूज होती है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टैक। ओके, अब देखिए, मैंने आप लोगों को बच्चे बताया था एरेज। एरेज क्या होता है? Arrays is a collection of similar type of data. We can store similar data. Similar means we can store all integers, all numbers, all float value, all string. Similar type of data we can store. Okay. And मैंने आपको बताया है linked list. Linked list क्या होता है? Linked list is a collection of collection of linear collection of data in a line form. लाइन की फॉर्म में आप स्टोर करते हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्टैक की। स्टैक क्या है? स्टैक, क्यू, ये सारे टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक हमने किया एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारे क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, लाइन की फॉर्म में वर्क करते हैं। ओके, ए स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच आइटम्स में बी इंसर्टेड और रिमूव्ड ओनली एट वन एंड, कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। इसके अंदर आप डालोगे भी एक ही साइड से, वी कैन इंसर्ट और डिलीट ओनली एट वन एंड, कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। उसको क्या बोलते हैं? टॉप। स्टैक का वो टॉप है, ठीक है। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक इज सीडी और बुक्स। हम कोई भी एग्जाम्पल, हम पार्टी में जाते हैं, ठीक है, पार्टी में जाते हैं, वहां पे ना प्लेट्स रखी होती है, हम प्लेट्स पिक करते हैं, वन बाय वन पिक करते हैं। एंड ऐसे तो नहीं होता कि हम बीच में से कोई प्लेट निकालते हैं, बिटवीन कोई पर्टिकुलर प्लेट आपने कभी निकाली बीच में से? नो, जस्ट वी हैव टू पिक द पर्टिकुलर a plate from upper side at the top point. Okay, we take example of CD case. CD case में क्या होता है? We can insert a particular CD in a particular top position and we can also remove a particular CD from top position. ऊपर से ही आप निकालोगे, ऊपर से ही डालोगे। आपने बुक्स रखी हुई हैं, तो various examples we can take. Okay, stack also called LIFO. LIFO means last in first out. लास्ट में जो आपने कोई चीज रखी है उसी को आप पहले आप आउट करोगे। दिस इज ए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया, ध्यान इस चीज पे आपको प्लीज बी अटेंशन। स्टैक क्या है? लीफो। ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक का बहुत ज्यादा हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। कहीं पर भी आपको यूज करना होता है तो आपको स्टैक ही हमारी लाइफ में आता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। देयर आर टू ऑपरेशन। इसमें जब भी आपके पास एक ही रास्ता हो ना, जब आप कोई पर्टिकुलर चीज आप डाल रहे हो भी और निकाल रहे हो, तो ओनली वन वे, दैट इज कॉल्ड स्टैक। देयर आर टू ऑपरेशन। फर्स्ट इज पुश।
push is an operation used to insert an element at the top of stack. Pop is an operation used to delete an element from the top of stack. ठीक है, आपके 2 ऑपरेशंस हैं. अब देखिए, दिस इज अ पर्टिकुलर एम्प्टी स्टैक. ये हमारा एक स्टैक तो है बट एम्प्टी है, देयर इज नो एनी एलिमेंट. व्हेन वी पुश एन एलिमेंट, अब देखो इसके अंदर ना आपका एक टॉप नाम का वेरिएबल होता है, एक टॉप होता है. जैसे आपके पास क्या है, टॉप. टॉप में क्या होता है, अब जैसे आप इसके अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो स्टार्टिंग में हम टॉप लेते हैं -1. -1 क्यों लेते हैं, बिकॉज व्हेन वी इंसर्ट एन एलिमेंट, क्योंकि 0 की भी पोजीशन होती है. एरेज, अगर आप एरेज के थ्रू आप इसको कर रहे हो ना यूज, तो एरेज में 0 की भी पोजीशन है, बिकॉज एरेज स्टार्ट फ्रॉम 0 पोजीशन. ओके, टॉप इक्वल टू क्या लेते हो, -1. -1 का मीनिंग क्या है, आउटर एरिया. दिस इज ए पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो बिल्कुल बाहर था. अब जैसे आपने पुश ए कर दिया, मान लो मैंने एक बुक रख दी, सीडी रख दी, एक प्लेट रख दी, इसका मीनिंग क्या है कि टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड. दिस इज ए पर्टिकुलर टॉप. ओके, अब देखिए, सपोज करो आपने इंसर्ट किया ए के ऊपर ही बी, तो आपका टॉप क्या हो गया, बी हो गया ना आपका टॉप, तो आपका ये टॉप हो गया. ऐसे ही आपने पुश सी आपने पुश कर दिया, तो आपका टॉप क्या हो गया, ये हो गया. इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0, 1 एंड 2. दिस इज ए पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू. ओके, जब आप एरेज के थ्रू वर्क करते हो, एरेज में आप इसको स्टोर करवाते हो. ठीक है, अब इसमें से आपने क्या करना है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आउट करना है, मतलब आपको एलिमेंट को पॉप करना है. ठीक है, पॉप मीन्स क्या होता है, रिमूव एन एलिमेंट, डिलीट एन एलिमेंट. ओके, अब इसमें से एलिमेंट आपने डाले तो ऐसे थे, पहले ए डाला, ए के ऊपर बी, फिर आपने सी डाला. ठीक है, बट इसमें से आउट कौन सा होगा, आउट होगा आपका पहले सी. देखो, पहले आपका सी आउट होगा. जैसे ही सी आउट हुआ, इट मीन्स टॉप आपका बी हो गया. टॉप आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, सेट हो जाएगा आपका ये. ऐसे ही आपने बी को आउट कर दिया तो टॉप आपका ये हो जाएगा. ठीक है, ऐसे आपने ए इसको आउट कर दिया, ए को भी, तो टॉप आपका क्या होगा, -1. ओके, दिस इज ए कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्टैक. क्लियर, हेलो, Yes, ma'am. Clear. Okay, ma'am. सबको क्लियर Yes, हुआ, ma'am. दोबारा बताया जाए या नहीं, Yes, ma'am. सबको क्लियर हो गया. Yes, ma'am. ओके, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए अभी स्टैक के, जो आप रियल लाइफ में आप यूज करते हो. ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो. हम घर में कोई भी काम करते हैं, ठीक है, हम घर में कोई भी पर्टिकुलर काम करते हैं, तो कोई जैसे आपने क्लोथ्स रख रहे हैं अपनी अलमीरा के अंदर, ठीक है, आप बीच में से कोई चीज निकालना चाहोगे तो ऊपर से सारी गिर जाती है, होता है ना ऐसा. ठीक है, जो लास्ट में जो चीज रखी है उसी को आप पहले आप निकालते हो, तो वो पर्टिकुलर ऑपरेशन वन साइड ही है. आपके पास डालने का भी और निकालने का भी एक ही रास्ता होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैक. ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक. अब स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, ओके, कैसे इसको यूज करोगे प्रॉपर. A stack is implemented with 2 basic operations, push and pop. Push means to insert an item onto stack. Pop means to delete an item from stack. ठीक है, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया. Stack can be implemented using an arrays and linked list. ओके, जो आपका स्टैक है वो आपका इंप्लीमेंट होता है arrays and linked list से. ठीक है, अब देखो, इन arrays and linked list we have done, arrays, linked list we have done. okay, you know the concept, arrays में क्या होता है, linked list में क्या होता है. ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, we can add or delete an element from any place. arrays में आप कहीं पर भी कोई एलिमेंट आप रिमूव कर सकते हो, और लिंक लिस्ट में भी आप कहीं से भी रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो. बट इन स्टैक वी कैन ऐड और डिलीट ओनली वन सेल. सिर्फ एक ही रास्ता है स्टैक के अंदर, सिर्फ ओनली वन वे. अब हम स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एरेज एंड लिंक लिस्ट. ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूजिंग एरेज एंड लिंक लिस्ट का कंसेप्ट क्या आता है, बताओ.
मैंने आपको बताया कि हम स्टैक को ना इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एरेज। एरेज के थ्रू भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो और लिंक लिस्ट के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे, थोड़ा सा आइडिया दोगे? मैं बताऊंगी पूरा कॉन्सेप्ट। मैं पॉइंट समझे कि पॉइंट क्या है। एक मेरे को स्टैक बनाना है। अगर आप यूजिंग एरेज बनाते हो तो एरेज का मतलब क्या होता है, साइज फिक्स होता है। आप एक स्टैक बना रहे हो, ठीक है, आपने कोई पर्टिकुलर सीडी केस बनाना है, कुछ पर्टिकुलर एक नंबर्स की लिस्ट आपको क्रिएट करनी है, बट इन यूजिंग एरेज दिस इज अ पर्टिकुलर फिक्स लिस्ट, ओके। एंड लिंक लिस्ट के अंदर आपको एक स्टैक बनाना है बट डायनेमिक, ओके। वी कैन क्रिएट ए पर्टिकुलर डायनेमिक स्टैक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि आप अपनी पर्टिकुलर लिस्ट को, स्टैक को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आप अपने चेन को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। डायनेमिक कॉन्सेप्ट है ये, ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी हमने ना इसको, हम लोगों ने एरेज एंड लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। लिंक लिस्ट क्या होती है, जो पर्टिकुलर आप रियल लाइफ में यूज करने वाले हो। आप लिंक लिस्ट को यूज करोगे एरेज के अंदर, स्टैक के अंदर, ठीक है, क्यूज के अंदर आप यूज करोगे। लिंक लिस्ट आपका ट्रीज में यूज होता है, जो पर्टिकुलर ट्रीज आप यूज करोगे, ठीक है, वेरियस टाइप के आपके ट्रीज होते हैं, उसके अंदर आप ट्रीज का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, ठीक है। तो लिंक लिस्ट आपकी जो चीज है वो आपकी आगे 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 बहुत सारी चीजों में यूज होती है। जब भी कोई पर्टिकुलर लिंक्ड फॉर्म में चीज आती है, देन वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। एरेज के अंदर ऐसा नहीं होता। एरेज में आपकी जो लिस्ट होती है ना, एडजेसेंट स्टोर होती है पर्टिकुलर डेटा, लिंक्ड नहीं होता डेटा पूरा। अब देखिए, आपको एक स्टैक क्रिएट करना है, एलिमेंट्स डालने हैं यूजिंग एरेज। एरेज में आपके पास एलिमेंट्स हैं, मान लो 5, 10, 20, 30 आपने एलिमेंट्स ले लिए, ओके। वी हैव 5 एलिमेंट्स, साइज फिक्स, ओके। एरेज के थ्रू आपका साइज फिक्स है, 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एरे का आपने साइज लिया है, ओके। देन वी कैन स्टोर ओनली 5 वैल्यू 0 to 4, ओके। दिस इज a particular algorithm of push operation on stack, ठीक है। फॉर पुशिंग, आप पुशिंग करने से पहले, एलिमेंट डालने से पहले ऑन स्टैक, फर्स्टली वी चेक द कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, देन पुश द एलिमेंट, ओके। ओवरफ्लो मीन्स यस, number of element more than allocated location. हाँ, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है और आप उससे ज्यादा एलिमेंट डालोगे तो ओवरफ्लो होगा, है ना। तो इट मीन्स ओवरफ्लो का मीनिंग आपको ये क्लियर होना चाहिए। इफ टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1, देखो आपने यहाँ पे ना एक मैक्स नाम का वेरिएबल लिया है, मैक्रो क्रिएट किया है। सी में हम मैक्रो क्रिएट करते हैं ना, तो आपने मैक्स नाम का एक लिया है जिसके अंदर 5 साइज दिया है, ठीक है। और आपने यहाँ पे टॉप, टॉप क्या है आपका, टॉप क्या होता है आपका, जो मूव करता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो टॉप आपका होता है वो मूव करता है, ठीक है। देखो आपके पास यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर क्या होता है, टॉप। जैसे जैसे आप डालते जाते हो, सपोज करो आपके पास यहाँ पे 0 इंडेक्स है, आपके पास यहाँ पे 1 इंडेक्स है, आपकी वैल्यू है यहाँ पे 10, 20, ओके। आपने वैल्यू यहाँ पे डाल दी 30, ओके। दिस इज ए पर्टिकुलर टॉप। टॉप क्या है आपका 2, ओके। टॉप आपके पास फिर क्या होगा 2 होगा। और मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक मैक्स, मैक्स नाम का वेरिएबल असाइन किया हुआ है 5, ओके। इट मीन्स आपने यहाँ पे टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1, मैक्स माइनस 1 मतलब हम वी कैन इंसर्ट ओनली 3 and 4, वी कैन इंसर्ट ओनली 5 एलिमेंट्स। जैसे आपका टॉप इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 4 के इक्वल हो गया, तो आप इसके अंदर वी कांट इंसर्ट मोर एलिमेंट्स, ओके। हम और एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैक क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगी, क्लियर। एल्स, एल्स का मीनिंग अदरवाइज, ओके। आपके पास अगर ऐसा नहीं है, मान लो स्पेस आपके पास अवेलेबल है, सपोज करो आपके पास अभी पॉइंटर कहाँ पे है, आपका जो पॉइंटर है अभी, मान लो पॉइंटर कहाँ पे है, 3rd पोजीशन पे, टॉप आपका यहाँ पे है, तो वी कैन इंसर्ट 2 more एलिमेंट्स, ओके। दिस इज अ पर्टिकुलर एल्स पार्ट, ओके। एल्स
top equal to top plus 1. First of all, top will be incremented and pushed item, whatever you want to add any element, and we can insert in a top position. Okay, this is a particular position, we can insert a particular value, like we have to store 40 value, we can, this is a particular top position, and 50 value, this is a particular top position. ठीक है, आपका टॉप जो होगा ना इंक्रीमेंट होगा बाय वन, समझ गए? यस, प्लीज नोट इट डाउन. दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ स्टैक यूजिंग एरेज. सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, बताइए. इट्स क्लियर मैम एल्स के बाद वाला टॉपिक एक बार दोबारा बता दो मैम. एल्स के बाद वाले का मतलब यहाँ पे क्या है कि सपोज करो मेरे पास अगर वैल्यूज हैं, सिर्फ मेरे पास 2 वैल्यू हैं, तो मेरा टॉप ये होगा ना 0 और 1. आपका टॉप आपका 20 पे होगा. ठीक है, आप इसका मतलब और एलिमेंट डाल सकते हो. ठीक है, तो अभी आपके पास इसके अंदर आ रहा है कि पहले टॉप आपका इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1. ठीक है, आफ्टर दैट पुश्ड आइटम, जो भी पर्टिकुलर आइटम आपको ऐड करना है वो टॉप पोजीशन पे आप डाल दोगे. पहले टॉप आपका बढ़ता है, जैसे मेरा 1 पे था तो 1 से 2 पे जाएगा, फिर आप वैल्यू डालोगे, 2 से 3 पे जाएगा, फिर वैल्यू डालोगे, ऐसे आपका इंक्रीमेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, पॉप ऑपरेशन ऑन स्टैक. पॉप का मतलब निकाल रहे हो. जब आप कोई एलिमेंट निकालोगे अपने स्टैक में से तो क्या चेक करोगे, अंडरफ्लो, उसमें कोई एलिमेंट है या नहीं. अगर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम क्या निकालेंगे, है ना. तो हमने किया इफ टॉप इक्वल टू -1. अगर मेरा टॉप -1 है, मैंने आपको -1 का बताया कि अगर -1 होता है तो इसका मीनिंग क्या है, वी हैव नो एनी एलिमेंट. ओके, इफ टॉप इक्वल टू -1 स्टैक इज अंडरफ्लो. ओके, स्टैक इज अंडरफ्लो. एल्स, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, मान लो मेरे पास 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट्स हैं. ओके, सो टॉप जो पर्टिकुलर पोजीशन है, टॉप इज पर्टिकुलर सेट पोजीशन. अभी देखो आपके पास यहाँ पे जो टॉप है ना वो सेट है. आपके पास टॉप कहाँ पे है, 50. पॉइंटर मतलब आपके पास क्या है, टॉप पोजीशन, वैल्यू हमारी 50 है, टॉप इज ए पोजीशन. ओके, 4th पोजीशन पे आपका पॉइंटर है. जैसे आपके पास अगर कोई वैल्यू नहीं है तो टॉप -1 है, अगर वैल्यू है आपके पास मान लो तो 50 वैल्यू को प्रिंट कराओगे और टॉप आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट 3 पे चला जाएगा, 40 पे पॉइंटर आ जाएगा. ऐसे ही सेम आपने इसको हटा दिया, पॉप कर दिया, तो आपका पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, इस पे. ठीक है, तभी आपका यहाँ पे इसके अंदर क्या हुआ है, जो पर्टिकुलर आइटम उसको प्रिंट करवाना है, स्टैक टॉप प्रिंट कराओगे, आफ्टर दैट टॉप -1, टॉप क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज ए पर्टिकुलर एल्गोरिथम ऑफ पॉप ऑपरेशन ऑन स्टैक. चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया. अब मैं बात कर रही हूँ लिंक लिस्ट की. हम लोगों ने लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है. अब लिंक लिस्ट के थ्रू आपने इंप्लीमेंट करना है स्टैक को. ठीक है, एक पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के अंदर आपकी जो स्टैक बनेगा ना, पहले वाला जो स्टैक आपने बनाया यूजिंग एरेज, जितने भी एलिमेंट्स थे वो लिंक्ड नहीं थे, जस्ट आपके पास एरेज के थ्रू आपके जितने भी एलिमेंट्स एडजेसेंट स्टोर थे. बट अब मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स आपके स्टोर होंगे स्टैक के अंदर, ऑल एलिमेंट्स इन लिंक्ड फॉर्म. लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट में लिंक, हर चीज लिंक होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है. एग्जाम्पल देखो, आपको अभी एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ. देखो ये पर्टिकुलर क्या है, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट. देखो आपके पास क्या होता है इसके अंदर, फर्स्ट क्रिएट ए टेम्प नोड, असाइन 44. अब देखो ये पर्टिकुलर आपको सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो, दिस इज ए पर्टिकुलर फर्स्ट नोड, ये हमारी फर्स्ट नोड है. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट नोड है. फर्स्ट नोड कंटेन द पर्टिकुलर डेटा पार्ट एंड लिंक पार्ट. दिस इज ए पर्टिकुलर लिंक पार्ट. लिंक पार्ट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एड्रेस कंटेन होगा. किसका कंटेन होगा एड्रेस, नेक्स्ट नोड का. ये हमारी नेक्स्ट नोड है. ठीक है, अभी देखो, अभी इसके अंदर यहाँ पे है नल. नल का मीनिंग क्या होता है, एवरी नोड कंटेन, फर्स्ट नोड कंटेन द नेक्स्ट पार्ट विल बी नल. एवरी नोड, जितना भी पर्टिकुलर फर्स्ट नोड के अंदर होता है ना, नल वैल्यू कंटेन होती है.
ठीक है। नल क्यों कंटेन होती है? क्योंकि एक पॉइंट चाहिए होता है कहाँ तक वो एंड करे, क्योंकि उल्टी चलती है ना, रिवर्स चलती है आपकी लिस्ट। ओके, एंड फर्स्ट नोड, दिस इज ए फर्स्ट नोड एड्रेस। ओके, फर्स्ट नोड का एड्रेस आपका क्या है? 5000। ठीक है। अभी यहाँ पे इसके अंदर आपके पास क्या है? नल। नल का भी रीजन है कि यहाँ पे इसके अंदर और पर्टिकुलर इसके नीचे कोई नोड नहीं है, तो ये मेरी फर्स्ट है, तो फर्स्ट नोड में इसके अंदर एड्रेस होगा, किसका एड्रेस होगा? नल का, अभी पहली नोड का। अब मैंने यहाँ पे 22 वैल्यू डाल दी, नेक्स्ट वैल्यू, एंड जो नेक्स्ट वैल्यू है ये एड्रेस कंटेन करेगा किसका? इस वाली नोड का, 5000। अब इसका एड्रेस हो गया 4900, 4900 इसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है, हर पर्टिकुलर नोड का एड्रेस कंटेन करता जाएगा ये। ठीक है। अब देखिए जैसे इसके अंदर जाएगा ना, तो ये एड्रेस आपका पॉइंट होता है। अब देखो ये पर्टिकुलर क्या है? टॉप। टॉप के अंदर पहले क्या था? नल, फिर आपके पास आ गया 5000, फिर 4900, फिर आपका 4800, ऐसे ऐसे इसके अंदर टॉप के अंदर लिंक आता है। लिंक, टॉप स्टोर द लिंक ऑफ लास्ट नोड, जो भी हमारी टॉप पोजीशन नोड होती है ना, उसके अंदर उसका लिंक रहता है। Yes, everyone got this particular point? Linked list concept, and मैंने आपको बताया इसके अंदर using arrays and linked list. स्टैक को इंप्लीमेंट आपने किया यूजिंग एरेज एंड लिंक लिस्ट। जो एरेज के अंदर कॉन्सेप्ट था वो आपके पास क्या था? ऑल द एलिमेंट्स स्टोर्ड इन एडजेसेंट नॉट लिंक्ड फॉर्म। बट लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू आप करोगे तो जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं स्टैक के अंदर वर्क कर रहे हैं, ऑल द एलिमेंट्स स्टोर्ड इन ए लिंक्ड फॉर्म। ठीक है। अब देखो जैसे आप इसमें आउट करोगे तो पहले आपका 44 आउट होगा, फिर 33 आउट होगा, तो टॉप के अंदर ना लिंक स्टोर होगा, ऑलवेज पॉइंट करेगा वो, इसके अंदर इसका लिंक जाएगा, इसके अंदर इसका लिंक जाएगा, जैसे जैसे आप उसमें से रिमूव करोगे, ऐड ऑन करोगे। ठीक है। अब इसके अंदर आपने यूज करना है एल्गो। पेपर में एल्गोरिथम आएंगे आपको, मैं पहले कह रही हूँ, क्योंकि आपका जो ये डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग, पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग बहुत रेयर केसेस में आती है। इसके अंदर जस्ट एल्गोरिथम्स आते हैं। जैसे मैं आपको ऑपरेशंस बता रही हूँ, doubly linked list, singly linked list, you have to make a particular diagram and show the particular, insert a particular list। आपने एक पर्टिकुलर नोड इंसर्ट करनी है, स्टार्टिंग में, बिटवीन, लास्ट में, उसका एल्गोरिथम लिखो। ठीक है। तो जो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए ना, सबके एल्गोरिथम्स आते हैं पेपर में। अब मैं आपको जो ये ऑपरेशन बता रही हूँ स्टैक का, क्यूज का, फिर आगे क्यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसकी जो पर्टिकुलर आपको डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन देनी है। समझ आ रहा है? हेलो हेलो, यस मैम। सबको क्लियर हो रहा है पॉइंट? एनी डाउट? नो मैम। ओके, सबको सबको समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? यस। अब देखिए आपको मैं इसमें कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ, पहले ये कॉन्सेप्ट करके फिर अटेंडेंस लेते हैं। ठीक है। अब देखो मैं आपको यूज बता रही हूँ, आपने यहाँ पे क्या यूज करना है? पुश ऑपरेशन ऑन स्टैक। ओके, पुश ऑपरेशन ऑन स्टैक यूजिंग, आप क्या करोगे? लिंक लिस्ट फॉर्मेट। ओके। अब इसके अंदर आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक ए पर्टिकुलर नोड। ओके, तो सबसे पहले आपको एक नोड बनानी है, तो आपने यहाँ पे मेंशन क्या करना है? टेम्प इन्फो इक्वल टू आइटम, temp info equal to item, and temp link equal to top, and top equal to temp। ओके। अब देखो ये प्रॉपर वे में क्या है? ऑलवेज देखो, टॉप ऑलवेज पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। सिंस stack implementation is through linked list, so we don't check overflow condition। अब इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है, we are using the concept of linked list। लिंक लिस्ट के अंदर आपको इसके ओवरफ्लो कंडीशन चेक नहीं करनी। ओवरफ्लो कंडीशन किस में चेक होती है? जब आप एरेज कॉन्सेप्ट यूज करते हो। एरेज में तो फिक्स होता है साइज, 5 का साइज है तो आपका साइज का फिक्स होगा, तो 5 ही डाल सकते हो, 5 से ज्यादा वी कांट इंसर्ट। ओके, बट इन लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? वी कैन स्टोर ए पर्टिकुलरली, ओवरफ्लो वी कांट चेक,
इसके अंदर आप चेक नहीं कर सकते। करोगे कैसे, क्योंकि आपके पास लिस्ट के डायनेमिक है। तो आपने एक लिस्ट बनानी है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, एक आपको आइटम, सबसे पहले आपने एक आइटम एक टेम्प नोड का लिया, टेम्प के इन्फो पार्ट में आपने डेटा रख दिया, ठीक है। दिस इज ए पर्टिकुलर टेम्प नोड, टेम्प इन्फो इक्वल टू डेटा आइटम एंड टेम्प लिंक, दिस इज ए पर्टिकुलर टेम्प लिंक। ये आपके पास क्या है, टेम्प लिंक। टेम्प लिंक को आप ना, जैसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, मेरी फर्स्ट नोड है, तो ये आपके पास है टॉप। आपने क्या करना है, इसके अंदर टेम्प, आपके पास आइटम आ गई, वैल्यू आ गई, यहाँ पे इसको आप लिंक कर दोगे, ठीक है। आप ये पुश ऑपरेशन कर रहे हो, सबके लिए बना रहे हो कि मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी डाले हुए हैं, ठीक है। मान लो मेरी फर्स्ट नोड है 10, ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। दिस इज अ पर्टिकुलर नल, ठीक है। एंड सेकेंड नोड इज 20, इट्स नोड एड्रेस इज पोस्ट 1000, okay. First node contain the, second node contain the address of first node 1000 and second node contain the address of 2000. This is a particular 2000, okay. And suppose we have to insert a particular node 30 node, मेरे को यहाँ पे एक नोड डालनी है, मान लो ये वाली नोड आपको इंसर्ट करनी है, and this is a particular top always point to the last node, जो हमारी लास्ट नोड होती है। अब इसके अंदर किसका एड्रेस कंटेन होगा, टॉप के अंदर एड्रेस किसका कंटेन होगा, बताइए। 2000। 2000 का, वेरी गुड। 2000 हमारा इसके अंदर आपके पास कंटेन होगा, क्योंकि ये आपकी ऊपर वाली नोड है। मान लो मेरे को अभी ये नोड इसके अंदर इंसर्ट करनी है, 3000 नोड इंसर्ट करनी है। दिस इज ए पर्टिकुलर नोड, वी हैव टू इंसर्ट 30 एंड ये आपके पास नोड एड्रेस किसका कंटेन करेगा, इसका एड्रेस, ठीक है। 2000 आपका यहाँ पे कंटेन होगा। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे इसके अंदर नोड आपकी होगी 2000, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ये आपका टॉप बन जाएगा, ठीक है। अब टॉप जो कंटेन करेगा एड्रेस किसका करेगा, ऊपर वाली नोड का 3000 है, इसका अपना एड्रेस है ना। तो ऐसे लिंक्ड फॉर्म में आपका वर्क करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, पॉप ऑपरेशन। पॉप का मीनिंग क्या होता है, रिमूव। आपको एलिमेंट को रिमूव करना है। जब आप रिमूव करोगे ना, तो इसके अंदर हमने पहले चेक किया था कि आपके पास एलिमेंट है या नहीं। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं चेक करते। इसके अंदर हम एक चीज चेक करते हैं, ये जरूर चेक करते हैं कि टॉप आपका नल तो नहीं है। इसके अंदर अगर कोई वैल्यू ही नहीं है, सपोज करो आपने स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको नल क्रिएट करते हो कि आपके पास कोई पर्टिकुलर टॉप के अंदर नल वैल्यू है। नल का मतलब क्या होता है, एम्प्टी, की कोई कुछ है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। एल्स, अदरवाइज, नहीं तो क्या होगा, आप रिमूव कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द टॉप इक्वल टू, जो टेम्प इक्वल टू टॉप। टॉप जो वैल्यू है आप टेम्प में स्टोर करोगे, टेम्प की इन्फो को प्रिंट कराओगे और टॉप आपका नीचे लिंक हो जाएगा। अब टॉप के अंदर आपके पास क्या आएगा, लिंक आएगा उसका प्रीवियस नोड का। जैसे आपके पास आपकी 3000 नोड है, टॉप नोड है, आपने अब लिंक डालना है 2000 के अंदर, 2000 लिंक आ जाएगा इसके अंदर। इसको रिमूव कर दिए, इसका लिंक आ जाएगा 1000, ओके। ऐसे ही आपके पास लिंक स्टोर होता है। और फ्री कर दोगे किसको, टेम्प नोड, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर, यस। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एवरीवन, please switch on your video, I have to take your attendance। यस, दीक्षा, मनीषा, नितेश, काजल, आर्यन, एवरीवन। सबको क्लियर हो गया?
आप लोग पढ़ते नहीं हो, मुझे ये लगता है। No, ma'am, actually, these all topics are already covered in BCA. So, like, kind of, like, I'm revising it. So, it's good. Okay. या मैं नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। Yes. मैं नहीं पढ़ पाता हूँ मैम क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और किसी तरह मैं कोशिश करता हूँ कि क्लासेस अटेंड हो जाए। लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। जब तक आप टाइम नहीं निकालोगे, आपको मैं कहती हूँ जो ये वाला सब्जेक्ट है ना आपका डेटा स्ट्रक्चर, इसके लिए आपको सीधा नहीं है ये, जैसे आप सीधा समझो, उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर साइंस। अभी एक एक मैं कॉन्सेप्ट। ओके, ऑल द पर्टिकुलर पॉइंट्स, लिंक लिस्ट। अभी तो आप आगे करोगे, देखो मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर ट्रीज, ग्राफ्स। या मैम मैं पास ओके, काम का बर्डन इतना ज्यादा है मैम कि पार्सली मुझे काम भी साथ में ही करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोगों आपको ने, मैं दिखा मैंने सकता भी हूँ कि करा था, हम लोगों ने भी ऐसे ही करा। मैंने भी जॉब के साथ साथ ही सब कुछ स्टडी करी है, सबके साथ नहीं मैम, होता मैं है। क्लास कर रहा हूँ उस समय भी आधा काम ही कर रहा हूँ। तभी आई एम वीडियो This is एक्सट्रीमली with सॉरी। everyone. चल रहे हैं ना, यस, आई एम है ना। एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझे ये बताना पड़ रहा है क्योंकि आई एम वेरी ऑनेस्ट मैम। काम का प्रेशर ही इतना ज्यादा है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मैम, आर प्रोग्रामिंग में मैं प्रोग्रामर हूँ और कोड करता हूँ। तो अब इसमें इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है और साथ में इधर भी दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो काश कि दोनों ब्रेन ब्रेन अलग अलग काम करते तो पूरा ग्रैब हो जाता है। मैं आप मिक्स कर रहे हो सब कुछ, है ना, मिक्स कर रहे हो ना। आप देखो इधर से सुन भी रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो, दोनों काम कर रहे हो, है ना। उसमें ध्यान से कभी वो कुछ हो ना जाए। प्रोजेक्ट ही ऐसा है मैम, क्या बताऊं अब ये। अगर पढ़ाई के तरफ ज्यादा फोकस करता हूँ तो फिर डेडलाइन मेरा इधर ब्रीच हो जा रहा है। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, क्या बताऊं। कोई बात नहीं, हो जाएगा। ओके, डोंट वरी फॉर दिस, हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलो आगे चले, डोंट वरी फॉर दिस। थोड़ा 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 पढ़ते रहो, आराम से सब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट इज द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। ओके, एप्लीकेशंस का मीनिंग क्या होता है? Where we use stack operation. Okay, there are basically three particular terms. First is infix to postfix conversion, infix to prefix conversion, and evaluation of expressions. Okay, what is infix, prefix, and postfix? First of all, you have to clear this particular point. Infix क्या होता है? Infix, in this notation, a binary operator is placed between its operands. Okay, and prefix notation, in this notation operators is placed before the particular operand. We can also call Polish notation. Okay, this is it। देखो आपका infix में क्या होता है, prefix में and postfix में। infix में क्या होता है, x plus y, operator always in between। okay, this is a particular operator। and pre में क्या होता है, पहले ऑपरेटर आता है, आफ्टर दैट एक्स एंड वाई। पोस्ट में क्या होता है, आफ्टर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेंड्स, देन आफ्टर ऑपरेटर। एंड इसके अंदर आपको क्या करना होता है, यू हैव टू पर्टिकुलर कन्वर्जन। आपको कन्वर्जन करना होता है इसके अंदर कि आपने इनफिक्स से प्रीफिक्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। दिस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट्स, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में, इनफिक्स से प्रीफिक्स में, एंड इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। अब मैं आपको सारी चीजें इसके अंदर
प्रॉपर वे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक भी करना है हमने कवर। देखो सबसे पहले मैंने आपको बता रही हूँ इनफिक्स। इनफिक्स से आपने कन्वर्ट करना है टू पोस्ट फिक्स। ओके, अब मैं आपको पहले शॉर्टकट मेथड बताऊंगी पहले, कि उसमें शॉर्टकट मेथड में रिजल्ट एक्यूरेट आता है। आपके पास यहाँ पे ना एक इक्वेशन गिवन है, कुछ भी हो सकता है, x प्लस या a प्लस बी इंटू सी डिवाइड डी। ओके, वी यूज द फॉर्मूला ऑफ बोर्ड मास। बोर्ड मास का फॉर्मूला सबको क्लियर होगा कि पहले ब्रैकेट आती है, फिर आपका इसके ना ऑफ आता है, आफ्टर दैट एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, अब देखो इसके अंदर आपकी जो प्रायोरिटी बेसिस के अकॉर्डिंगली वर्क होता है। मैं पहले आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगी, फिर लॉन्ग मेथड बताऊंगी, क्योंकि पेपर में तो लॉन्ग ही करना है, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट में आपका ना जो रिजल्ट एक्यूरेट रिजल्ट आता है। इन फिक्स आपकी इक्वेशन है, यू हैव टू यूज पर्टिकुलर पोस्ट फिक्स, कन्वर्ट पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे गिवन है, लेफ्ट टू राइट यू हैव टू स्कैन b इंटू सी। आपके पास यहाँ पे गिवन है b इंटू सी, इन है, आपने इसको पोस्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। आपके पास है पहले मल्टीप्लाई, प्लस को नहीं लेना पहले, क्योंकि प्लस की प्रायोरिटी क्या होती है, लो प्रायोरिटी। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, b c मल्टीप्लाई, इसको आपने सपोज कर दिया 1। ओके, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस क्या आया, a प्लस 1, क्योंकि मैंने इसको नाम दे दिया 1, डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका d, ठीक है। अब देखो आप इसको जब आप यहाँ पे टर्म लोगे, आपके पास क्या बनेगा, 1d डिवाइड, आपने इसको सपोज किया 2, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, a प्लस 2, a प्लस 2, ठीक है। हमने यहाँ पे दे दिया इसको a2 प्लस, क्योंकि आपके ऑपरेटर्स बाद में आते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो जब आप इसको फुल रिजल्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, a, फर्स्ट ऑफ ऑल a, 2 का मीनिंग क्या होता है, 1 d डिवाइड, 2 को मैंने सपोज किया है 1d डिवाइड, ठीक है। 1 का मीनिंग क्या होता है, थैंक्स, 1 का मीनिंग क्या होता है, आपके पास 1 की वैल्यू क्या है, बी सी मल्टीप्लाई, आपके पास क्या आएगा, बी सी मल्टीप्लाई, ठीक है, बी सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड। समझ आया, यस। ये तो मैंने छोटी सी इक्वेशन ली है, छोटी सी, स्मॉल सी, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसके अंदर किया, इनफिक्स था, इसको आपने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया। सबको एक्सप्लेनेशन हुई क्लियर या नहीं? Ma'am, can you repeat it once more really quickly? हाँ, ये छोटी सी को भी वंस मोर, बड़ी को क्या करोगे, बड़ी को क्या करोगे यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताती हूँ रुको। देखो आपके पास है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड डी। मैंने आपको बताया कि आपका लेफ्ट टू राइट स्कैन होता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे इन है, इसको पोस्ट में कन्वर्ट करने होते हैं ऑल द ऑपरेटर्स। ओके, जैसे आपके पास यहाँ पे b मल्टीप्लाई सी, देखो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा बी सी, और मल्टीप्लाई को आपने बाद में इसको बाद में लिखना है, क्योंकि ये पोस्ट हो गया ना, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, 1 का। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 1, a प्लस 1, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट करके 1 नाम दे दिया, तो a प्लस 1 डिवाइडेड बाय d हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व किया, क्योंकि आपका प्लस अभी नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है हमारे पास हाई प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो आपने यहाँ पे रखा 1d डिवाइड, 1d डिवाइड, ऑपरेटर बाद में आता है, तो मैंने इसको नाम दे दिया 2, ठीक है। आफ्टर दैट आपके पास a प्लस 2, आपके पास आया a प्लस 2, ओके, a प्लस 2, आफ्टर दैट a 2 प्लस आ गया, कंप्लीट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली a 2 प्लस आ गया,
ठीक है। आफ्टर दैट आपने आपके पास यहाँ पे A2 प्लस आ गया, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा A2, आपने ना इसके अंदर वैल्यू पुट ऑन करनी है, जैसे आपने सेट की है। 2 की वैल्यू क्या है बताइए, 1D डिवाइड, 1 की वैल्यू क्या है, BC मल्टीप्लाई। देखो 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है BC मल्टीप्लाई, आपने यहाँ पे रखा BC मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर आफ्टर दैट D डिवाइडेड, D डिवाइड हो गया, ये 2 हो गया हमारा। आफ्टर दैट प्लस। अब समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब मैं आपको इसका लॉन्ग मेथड बता रही हूँ। अब इसका लॉन्ग मेथड ध्यान से देखना, इसमें जो रिजल्ट आता है ना, इस रिजल्ट को साइड में रख लो। अब मैंने इस रिजल्ट को साइड में रख दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट हमारा इसमें एक्यूरेट रिजल्ट आता है। अब मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रही हूँ। देखो जो पेपर में करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन, सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है, इनपुट। एक चार्ट फॉर्म में आपको क्रिएट करना है इनपुट। आप यहाँ पे ना स्टेप भी दे सकते हो, स्टेप 1 2 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे रखा इनपुट, एंड यहाँ पे आपको देना है स्टैक। आफ्टर दैट राइटिंग में मत जाना, मेरी राइटिंग ऐसे ही आ रही है, ओके। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आउटपुट। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा, ठीक है। अब देखिए आपने जब आउटपुट यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इनपुट। इनपुट मीन्स क्या होता है, 1 by 1। फर्स्ट इज A, इनपुट करना है आपने A। आफ्टर दैट स्टैक में आपने सिर्फ क्या रखने, ओनली ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, A। आफ्टर दैट प्लस, यहाँ पे आया प्लस, स्टैक में क्या आएगा आपका, प्लस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ओनली A आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब आपके पास क्या आता है, बी में आपने यहाँ पे सेट किया। देखो बी जब आप यहाँ पे सेट करोगे तो यहाँ पे आपके पास ओनली प्लस ही आएगा, ऑपरेटर्स आपके हमेशा यही रहते हैं। ए बी यहाँ पे आएगा आपका, आउट में आएगा बी। अब देखो यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई। अब मैंने यहाँ पे जब इनपुट किया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ना ऐसे फॉर्म में चल रहा है प्लस। अब इसकी हाई प्रायोरिटी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर आ सकता है, ठीक है। अगर इसी का रिवर्स होता, पहले आपके पास होता मल्टीप्लाई फिर प्लस होता, तो हमें एक को आउट करना पड़ता, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी वाला जो पर्टिकुलर है वो आपके पास हायर प्रायोरिटी वाला ऊपर रह सकता है, बट आपके पास इसी का रिवर्स होता तो नहीं रह सकते थे, ठीक है। अभी आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ए बी। नेक्स्ट इज अ सी, नेक्स्ट आपके पास सी है, यहाँ पे आपका एज इट इज रहेगा ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिवाइड। अब देखना ध्यान से, हमारे पास अंदर क्या है, यहाँ पे स्टैक में फर्स्ट प्लस, फिर आपके पास है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और आपके पास यहाँ इसके ऊपर नहीं रह सकता, ये इसके ऊपर नहीं रह सकता, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू आउट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को आप आउट कर दोगे, यहाँ पे आपके पास आएगा ए बी सी मल्टीप्लाई, हमने आउट कर दिया, और यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली डिवाइड। नेक्स्ट इज अ डी। जब आप यहाँ पे डी करोगे तो आपके पास आएगा ए बी सी मल्टीप्लाई डी, ठीक है। आफ्टर दैट और कोई है ही नहीं, तो आपका जो स्टैक के ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली आपका लीफो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। लास्ट में आपने डिवाइड डालना है, आफ्टर दैट आपको प्लस डालना है। अब इसका रिजल्ट इस रिजल्ट से मैच कर सकते हो, ओके। इसमें जो रिजल्ट आता है एक्यूरेट आता है। इसमें अगर उल्टा पुल्टा हो भी जाए आपका, क्योंकि इक्वेशन अगर लार्ज होगी, बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस आती हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जब सॉल्व करना होता है तो इसमें आप करके साइड में रखो इसको, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको करोगे तो आपका आउटपुट सही निकलेगा। समझ आया? मैंने कोई ब्रैकेट नहीं ली, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपके अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस मैम। ये मैंने आपको बताया इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन और आता है आपका इनफिक्स टू प्रीफिक्स।
अगर आपने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना होता है तो कन्वर्जन के लिए उसका स्टेप नोट करना। जब आप इसका प्रीफिक्स में कन्वर्ट करोगे ना, इसको शॉर्टकट मेथड तो वैसे ही करना है, प्री का मतलब पहले ऑपरेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आपने लॉन्ग मेथड करना है तो पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे, रिवर्स करोगे। जैसे a प्लस बी इंटू सी डिवाइड डी है ना, तो आपने पहले इसको उल्टा करना है, d डिवाइड सी मल्टीप्लाई b, मल्टीप्लाई है ये b प्लस a। इसको आपने रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद आपने इसको ऐसे फॉर्म में करना है, मतलब इसको जो मैंने आपको बताया इनपुट स्टैक आउटपुट डी डिवाइड ऐसे ऐसे करना है। फिर जो रिजल्ट आएगा फिर आपने उसको रिवर्स करना, रिजल्ट आएगा ना जो लास्ट में, उसको रिवर्स करके फिर आपने शो करना है, तो वो आउटपुट होगा। वो रूल है इसका, इनफिक्स से आपने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर जब आप करोगे ना तो सेम पोस्ट फिक्स में ही करना, जैसे आप एक एक करके डालोगे, ठीक है। बट आपने इसके ये चीज ध्यान रखनी है, रिवर्स बाद में फिर करना, ठीक है। हो गया आपका ये, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आप कन्वर्ट करते। इवेल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? इवेल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन मींस आपने इवेल्युएट करना होता है। मान लो मेरे पास यहाँ पे गिवन है 5 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस, मेरे पास यहाँ पे ना ये इक्वेशन दी हुई है इन पोस्ट फिक्स में गिवन है। इट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 5 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया 10, ठीक है। आपके पास ऐसा आया 10 8 प्लस, इसका मीनिंग क्या है कि 10 प्लस 8 रिजल्ट क्या आएगा आपका 18। इसी का ना रिवर्स भी हो सकता है, जैसे पहले आ गया आपका मल्टीप्लाई 5 2 प्लस 8, ऐसे भी हो सकता है। इसका मीनिंग भी यही है कि आपने 5 को 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो 10, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे प्लस 8 18 आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आपका ये किसी भी फॉर्म में आता है, ये होता है आपका इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन, आपने इवेल्युएट करनी है। सबको क्लियर हुआ? ये एग्जांपल आप नोट कर लो, ये आप उसको करके देखना। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट इज अ क्यू। ओके, स्टैक हमने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका आता है, क्यू। अब देखो क्यू क्या होता है। क्यू इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, अनऑर्डर्ड कह रही, ऑर्डर्ड। Q is an ordered list of elements in which we can add element only at one end called rear of the queue and delete elements only at the other end called front of the queue. Okay? अब जो क्यू है ना बेसिकली लाइन है, हम लोग लाइन में खड़े होते हैं, है ना, अपनी कार पार्किंग में लगाते हैं, वो भी लाइन के अकॉर्डिंगली, हम कहीं भी ऐसे नहीं लगा सकते, क्यू लगती है प्रॉपर वे में, है ना। कहीं भी आप जाते हो, आप पर्टिकुलर मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हो, बिल भरने जा रहे हो, कोई आपने टिकट लेनी है, तब भी आप इसके अंदर लाइन में खड़े होते हो, तो कहीं ना कहीं क्यू में हमें लगना होता है। ओके, तो क्यू सेम क्या है, क्यू इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच वी कैन ऐड एलिमेंट ओनली एट वन एंड, मतलब देयर आर टू पर्टिकुलर वेज। फर्स्ट वी हैव टू इंसर्ट, वन साइड से आप इंसर्ट होते हैं, सेकंड साइड से आपका क्या होता है, डिलीट होते हैं, मतलब आपकी टर्न आ गई तो आप आउट हो जाओगे इस लाइन से, है ना। तो वी कॉल्ड फर्स्ट इज द कॉल्ड वेयर वी हैव टू इंसर्ट एन एलिमेंट, ऐड एन एलिमेंट कॉल्ड रियर ऑफ द क्यू and delete from other side, that is called the front of the queue. Okay, we can see in the queue of people and queue of cars that the people or the car that comes first in the queue will be out first.
So Q is also called FIFO. Okay. Stack is called the LIFO and Q is called the FIFO. FIFO means first in first out. जो फर्स्ट आपके पास लाइन में ऐड हुआ है तो इट मीन्स वो फर्स्ट आउट होगा. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आता है, क्यू कॉन्सेप्ट है. टाइप्स ऑफ क्यू, देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ क्यूज. फर्स्ट इज सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू. ओके, प्रायोरिटी क्यू आपके पास लास्ट आपका होता है प्रायोरिटी क्यू. फर्स्ट इज द सिंपल क्यू. अब सिंपल क्यू क्या होता है? अब देखो, दिस इज ए पर्टिकुलर क्यू, बिल्कुल सिंपल से आपका ये क्यू है. सिंपल क्यू का मतलब जस्ट यू हैव टू इंप्लीमेंट यूजिंग एरेज कॉन्सेप्ट. ओके, same we can use this particular queue, we can use a particular arrays and linked list. ठीक है, आप arrays की तो भी अपनी क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हो और linked list में. arrays में क्या होगा, all the particular queue elements stored in adjacent position. मतलब कोई लिंक फॉर्मेट नहीं होगा arrays के अंदर, बट एक क्यू तो बनेगी, लेकिन क्यू के साथ साथ में सारे एलिमेंट क्या होंगे, स्टोर्ड होंगे एडजेसेंट. ओके, दिस इज ए पर्टिकुलर एम्प्टी क्यू. Okay, there is no any element. So in particular we have done the concept of stack. Stack is a particular क्या है, LIFO operation. There is only one way. Okay, in stack there is only one way. We have to insert and delete an element, and we have to use the concept of top. Top आपका वहाँ पे पोजीशन होता है जो पर्टिकुलर मूवमेंट देता है आपको. ठीक है, बट इन दिस पर्टिकुलर क्यू में क्या होता है आपके पास, फ्रंट एंड रियर. फ्रंट का मीनिंग क्या होता है और रियर का मीनिंग क्या होता है? देखो, आपके पास फ्रंट मीन्स क्या होता है, वेयर वी हैव टू डिलीट एन एलिमेंट, एंड रियर मीन्स वी हैव टू इंसर्ट एन एलिमेंट. स्टार्टिंग में आपका एम्प्टी क्यू है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एम्प्टी क्यू. इट मीन्स फ्रंट और रियर दोनों आपके पास क्या है, -1. It means -1 means empty stack, no any element. Okay, अब देखो, जैसे आपने एक इंसर्ट कर दी, एडिंग एन एलिमेंट इन द क्यू, 1 आइटम आपने डाल दिया, 5 वैल्यू आपने स्टोर कर दी. ओके, एंड दिस इज अ पर्टिकुलर फर्स्ट नोड. फर्स्ट आपने पर्टिकुलर आपने एलिमेंट इंसर्ट किया, तो रियर की वैल्यू क्या हो गई, 0. ठीक है, और फ्रंट आपका 1 टाइम विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 0. 0 से आपके पास क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर -1 से 0 हो जाएगा फर्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल बाहर था, आउटसाइड था. जस्ट यू हैव टू इंक्रीमेंट बाय 1. ओके, जैसे आपने यहाँ पे 0 एलिमेंट हो गया, दिस इज ए पर्टिकुलर फर्स्ट एलिमेंट. और नेक्स्ट आपके पास क्या, फ्रंट तो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा. ओके, एंड रियर विल बी इंक्रीमेंटेड. रियर साइड से आप, जैसे हम नॉर्मल क्यू में खड़े होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही स्पोज करना, बिल्कुल वैसे ही स्पोज करना. अभी एक लाइन में कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं लगा, जैसे ही लाइन में एक एक करके आते जा रहे हैं, तो हमारा जो पॉइंटर है ना, वो रियर, लास्ट वाला पॉइंटर रियर है, वहां से एलिमेंट डल रहे हैं. ओके, दिस इज ए पर्टिकुलर रियर पॉइंट. ये हमारा यहाँ पे क्या है, रियर. ठीक है, आपका ये रियर है और ये हमारा फ्रंट है. फ्रंट साइड से एलिमेंट क्या होते हैं, डिलीट होते हैं. ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैंने एक एलिमेंट रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे ना स्पेस एज इट इज रह जाता है. दिस इज ए पर्टिकुलर सिंपल क्यू, ऑर्डिनरी क्यू. इसके अंदर आपका स्पेस, जैसे नॉर्मल क्यू होती है तो यहाँ पे 10 आगे आ जाएगा, नो 10 आगे नहीं आता. इसमें फ्रंट आपका मूव होता है. फ्रंट आपका यहाँ पे क्या होगा, 1. ठीक है, फ्रंट 1 हो गया और रियर आपका 2 है. जैसे आप और इंसर्ट करोगे तो रियर 3 हो गया. ऐसे ही आप दोबारा से इसके अंदर और डालोगे तो रियर आपके पास क्या होगा, आपका बढ़ता रहता है. समझ आया कॉन्सेप्ट? बताइए, आपको सबको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आया? अभी रियर मैंने यहाँ पे कर दिया 18, तो रियर कितना हो गया, 4. यस, बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, clear. आपको क्लियर हो गया? अच्छा देखो, ये मैंने आपको क्या बताया अभी, फ्रंट एंड रियर. कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा क्या है ये कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट बताओ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. बताइए.
front is basically used for deleting element and rear is basically used for inserting element. इंसर्टिंग एलिमेंट, वेरी गुड। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इतना ही बताया अभी। फ्रंट साइड से एलिमेंट आपके डिलीट होते हैं, रियर साइड से एलिमेंट ऐड ऑन होते हैं, ठीक है। अभी जैसे जैसे आप इसके अंदर और पर्टिकुलर चीजें पता लगेंगी आपको, तो आराम से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ऑपरेशंस ऑफ एरे, ऑपरेशंस ऑफ क्यू, एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू एंड लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। आपने एरेज के थ्रू क्यू को इंप्लीमेंट करना है और लिंक लिस्ट के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करना है। एरेज के थ्रू का मतलब क्या है और लिंक लिस्ट के थ्रू मतलब क्या है, बताओगे? बताओ। हम लोग स्टैक में भी पढ़ा है हमने ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना। मतलब क्या है इसका? The only difference is the data type. If we say array, all the values in the queue should be of the same data type, whereas in the linked list, data type change हो सकता है. I think. In arrays implementation, we have done the particular concept in stack. All the elements stored in static memory. Static memory means fixed memory. Okay, just we have to make a particular queue. Okay, all the particular elements, you have to make a particular queue fixed memory location, memory size fix. Okay, but in linked list implementation means we have to make a particular queue in a linked list format that will be dynamic. ओके, हमारी क्यू का साइज इसके अंदर लिंक लिस्ट में फिक्स नहीं होगा, बट एरेज के कॉन्सेप्ट में आपका क्यू का साइज क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। आपके पास इसका मतलब क्या हो, जो क्यू तो आपकी बन रही है एरेज के अंदर, तो आपका साइज इसके अंदर डायनेमिक कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते। आपका लिमिट होगा कि आपकी क्यू तो बन रही है 10 पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बन रही है, 20 एलिमेंट्स की बन रही है, लिंक लिस्ट के अंदर नो साइज फिक्स, डायनेमिक लिस्ट वी हैव टू मेंटेन। ओके, यस। As stack queue is also a collection of same type of elements. ये तो सबको क्लियर है। आप कोई पर्टिकुलर क्यू बनाते हो तो सेम टाइप का कलेक्शन बनेगा, लाइक ऑल पर्टिकुलर एलिमेंट्स। आप इंटीजर बना रहे हो, कैरेक्टर्स बना रहे हो, तो सेम टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा, ठीक है। एरेज के कॉन्सेप्ट में, है ना। We want to add an item in queue at rear end and delete the item in the queue at front end. ये आपको सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट कि ऐड कहां से होती है, रियर साइड से, और डिलीट कहां से होती है, फ्रंट साइड से। वी टेक टू वेरिएबल्स, रियर एंड फ्रंट। ऐड ऑपरेशन इन क्यू। अब देखो क्यू के अंदर आपको यूज करना है ऐड ऑपरेशन। ओके, अब दिस इज ए पर्टिकुलर एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ऑफ किस चीज का एल्गोरिथम है आपका ये, यूजिंग एरे। आपको एक पर्टिकुलर क्यू क्रिएट करना है ऐड ऑपरेशन के थ्रू, जिसके अंदर आपका साइज फिक्स है, ठीक है। अब इस चीज को बड़े ही ध्यान से अंडरस्टैंड करना। मैंने बताया था एरेज के थ्रू मैक्स साइज का मतलब क्या होता है, आपने मैक्सिमम साइज डिक्लेयर किया हुआ है, दैट विल बी फिक्स। ओके, आपने साइज ऊपर लिया हुआ है 5, 10, 20 जो भी दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप रियर साइड से एलिमेंट डालोगे। रियर क्या है आपका, जो एलिमेंट इसके अंदर ऐड ऑन करता है, ठीक है। इसमें आपके टू वेरिएबल्स लेके चलने होते हैं, रियर एंड फ्रंट। उसमें क्या था, ओनली टॉप वेरिएबल, टॉप था, टॉप आपका बढ़ रहा था घट रहा था, है ना। बट इसके अंदर आपके पास क्या है, इफ रियर इक्वल टू नेक्स्ट साइज -1, इट मींस आपका एरे इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 पोजीशन। अगर आपका 10 है तो आपका 9 तक आपका स्टोर होगा 10 - 1। ओके, अदरवाइज आपका क्या होगा, इक्वल हो गया तो क्यू ओवरफ्लो, आप दोबारा नहीं डाल सकते। अगर 9 आपके पास एलिमेंट्स डल गए तो हम और नहीं डाल सकते, है ना। क्यू क्या होगा आपका, ओवरफ्लो इन एरेज केस। ओके, एल्स अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, टू केसेस यू हैव टू मेंशन द टू केसेस, क्योंकि दिस इज द पर्टिकुलर एल्गोरिथम ऑफ ऑल द पर्टिकुलर इंसर्टिंग एलिमेंट। आप एक या दो या बिल्कुल स्टार्टिंग वाला एलिमेंट डाल दो या लास्ट एलिमेंट डाल दो या 2, 3 डाल दो, ये तो आपने सबके लिए एल्गोरिथम बनाया है ना। आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने से पहले यू हैव टू चेक
कि आपका साइज तो फुल नहीं हो गया या एक भी एलिमेंट नहीं है। दोनों केस लेके चल रहे हैं हमने। या तो मैं अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में खाली पड़ा था, इफ फ्रंट इक्वल टू -1 दैट विल बी एम्प्टी क्यूब। ओके, दिस इज ए पर्टिकुलर एम्प्टी क्यूब, मैंने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं डाला तो आपका एम्प्टी क्यूब होगा ही, है ना। या आपका साइज फिक्स होगा, इसके अंदर मैक्सिमम आपने डाल दिया, एलिमेंट ओवरफ्लो हो गया। ओके, दो केस हमें चेक करें इसके अंदर। इफ फ्रंट इक्वल टू -1, तो अगर -1 है तो इट मीन फ्रंट को स्टार्टिंग में 0 क्रिएट कर दो, अदरवाइज रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर तो ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय 1। ओके, एंड एडेड आइटम मीन्स whatever we have to input any item in, we can insert in a rear place, rear position. Okay, rear is a particular point where we have to insert an element. Okay, just we have to added item जो आपको insert करना है वो insert कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, rear side से आपके एलिमेंट ऐड होंगे, फ्रंट आपके पास as it is रहे। Okay, next is a, please note it down, this is a particular algorithm of add operation in queue। ये जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप कहीं और जाके देखोगे ना तो आपको जो लॉजिक होगा ना बड़ा थोड़ा अलग सा होगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितने भी मैंने यहाँ पे क्रिएटेड किए हुए ना वो बिल्कुल सिंपल लॉजिक से, ताकि अंडरस्टैंड हो जाए सबको। यस, नेक्स्ट इज द डिलीट ऑपरेशन। अब डिलीट का मतलब क्या होता है, देखो क्यू में से रिमूव करना, ठीक है। अब रिमूव करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन टू पर्टिकुलर पॉइंट्स हियर। इफ फ्रंट इक्वल टू -1 और रियर ग्रेटर देन फ्रंट ग्रेटर देन रियर, अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लाइन, क्या मतलब है इस लाइन का, बताओ कोई मेरे को बताएगा इस लाइन का मीनिंग क्या है। इफ फ्रंट इक्वल टू -1 एंड फ्रंट ग्रेटर देन रियर, देखो मैं डिलीट कर रही हूँ कोई एलिमेंट। जब आप डिलीट करते हो, अगर आपने कोई एलिमेंट ही नहीं होगा मेरी लिस्ट में तो हम रिमूव क्या करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया, इफ फ्रंट इक्वल टू -1 का मतलब मेरे पास एक भी एलिमेंट नहीं है या मैंने सारे रिमूव कर दिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने एक एक करके सारे, फ्रंट आपका ग्रेटर देन रियर हो गया, ठीक है। देखो कब होता है ये, आपके पास यहाँ पे आपने इसको रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, तो फ्रंट क्या होगा, ये फ्रंट होगा आपका, इसको भी रिमूव कर दिया तो फ्रंट आपका ये हो गया, रियर तो आपका 4 ही है। ओके, आपने इसको भी रिमूव कर दिया। जैसे आप रिमूव करते हो ना तो फ्रंट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, इट मीन्स आपका फ्रंट हो गया 5 और रियर आपका 4 ही है, 4 से 5 हो गया। अगर जैसे आपके पास यहाँ से 4, ये आपका हो गया 5 और ये आपका 4 है, इट मीन्स आपका ओवरफ्लो हो गया, क्या आपने अंडरफ्लो हो गया। अंडरफ्लो मीन्स कि वी हैव नो एनी एलिमेंट फॉर डिलीटिंग। ओके, रिटर्न वो आउट हो जाएगा। एल्स मीन्स अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं है तो आप यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ फ्रंट वैल्यू, आप फ्रंट वैल्यू को प्रिंट कराओगे और फ्रंट आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। फ्रंट आपका, अगर ऐसा नहीं है आपके पास एलिमेंट्स आपकी लिस्ट में हैं तो आप एक एक करके एलिमेंट को डिलीट, मतलब फ्रंट आपके पास मूव होगा, ठीक है। फ्रंट आपके पास प्रिंट होगा एंड इंक्रीमेंटेड बाय 1। ओके, नेक्स्ट इज अ लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन इन ए क्यू। अब मैं एक क्यू बना रही हूँ बट वो आपके पास क्या है, लिंक लिस्ट फॉर्मेट। पहले कोई लिंक फॉर्मेट नहीं था, वो एक लाइन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बिल्कुल सिंगली लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। देखो ये सिंगली लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे आपका फ्रंट है और यहाँ पे रियर है, रियर साइड से आपके एलिमेंट इसके अंदर ऐड ऑन होते हैं। ओके, वी हैव 4 एलिमेंट्स, फर्स्ट इज अ डेटा पार्ट एंड सेकंड इज अ एड्रेस। देखो इसके अंदर भी एड्रेस कंटेन हो रहा है, जैसे आपके पास यहाँ पे ना एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन होगा 1004, 1008, ओके, 1012 आपके पास यहाँ पे एड्रेसेस कंटेन होंगे। ओके,
रियर आपके पास क्या होगा, लास्ट वाला एलिमेंट स्टोर है नल पॉइंटर। ओके, जैसे उसमें कॉन्सेप्ट था सिंगली का, वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर भी क्या आते हैं, ऐड ऑपरेशन इन क्यू, दिस इज ए पर्टिकुलर एल्गोरिथम यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंगली, डायनेमिक के अकॉर्डिंगली। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सपोज करो आपके पास है ना ऐड ऑपरेशन है, ऐड कहाँ पे होंगे, लास्ट में। मान लो मेरे पास एक तीन पर्टिकुलर 3 एलिमेंट्स है, देखो मेरे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 5 6 7, ठीक है। अभी मेरा रियर कहाँ पे है, फ्रंट कहाँ पे है, बताओगे, बताइए। यस, रियर कहाँ पे है पॉइंटर, ये आपका रियर है, ठीक है। मेरे को लगता है कि आप सारे सो रहे हो, क्या कोई और काम कर रहे हो साथ साथ, है ना, आपका ध्यान ही नहीं है। ध्यान नहीं है ना आप लोगों का। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा, तो 1 सेकेंड में आपका आंसर आना चाहिए कि मैम रियर यहाँ पे है आपका लास्ट में, ठीक है। अब देखो ऐड ऑपरेशन, जस्ट यू हैव टू इंसर्ट एन एलिमेंट, दिस इज अ पर्टिकुलर टेम्प नोड, वी हैव टू इंसर्ट इन ए लास्ट पॉइंट। ओके, लास्ट में आपको ऐड करनी है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या सेट करना है, दिस इज ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, टेम्प इन्फो। टेम्प इन्फो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करोगे, वैल्यू ऐड करोगे, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे 8 वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपकी लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड विल बी null and you have to set this particular address in this node. You have to mention, first of all you have to check, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट नोड भी हो सकती है, लास्ट भी हो सकती है, तो आप चेक करोगे इफ फ्रंट इक्वल टू नल। अगर आपका फ्रंट नल है तो आपके पास जो टेम्प वाली नोड है वो फ्रंट बनेगी, एल्स नहीं तो वो लास्ट वाली बनेगी, ठीक है। तो आपके पास नहीं तो क्या होगा, रियर नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प, ये रियर के नेक्स्ट में आपने इसको डाल दिया, ठीक है। आपने मेंशन किया रियर नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प, इस पर्टिकुलर नोड को आपने रियर में ऐड कर दिया और ये आपका रियर बन गया। पहले ये रियर था, अब ये रियर बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऐड ऑपरेशन। नेक्स्ट इज द डिलीट ऑपरेशन इन क्यू। डिलीट का मतलब क्या होता है, आपने क्यू में से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है। जब आप रिमूव करोगे तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द फ्रंट वैल्यू। फ्रंट आपके पास चेक होगा, अगर मेरा फ्रंट नल है तो आपका अंडरफ्लो कंडीशन में जाएगा, एल्स नहीं तो क्या होगा, आप फ्रंट वैल्यू यू हैव टू मेंशन टेम्प पॉइंटर, टेम्प इज ए पर्टिकुलर पॉइंटर, स्टोर द एड्रेस ऑफ फ्रंट वैल्यू। ओके, फ्रंट वैल्यू जो भी होगी आपकी टेम्प में स्टोर होगी, यू हैव टू प्रिंट द टेम्प इन्फो। आपने टेम्प की इन्फो को प्रिंट कराना है और फ्रंट इक्वल टू फ्रंट नेक्स्ट, फ्रंट के अंदर एड्रेस आएगा किसका, नेक्स्ट वैल्यू का, और फ्री करोगे किसको, टेम्प नोड को। समझ आया, दिस इज ए पर्टिकुलर डिलीट ऑपरेशन इन क्यू। आपने क्यू में से एलिमेंट को रिमूव करना, नोट कर लो। ये मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, ऐड ऑपरेशन इन क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट एंड डिलीट ऑपरेशन इन क्यू, नोट कर लीजिए। अब बताइए सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस मैम। अच्छा, सर्कुलर लिंक लिस्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं कर रहे क्योंकि ओवर बिल्कुल बहुत ओवर हो जाएगा। यस मैम। मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, आपको मैंने कॉन्सेप्ट अभी कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताए हैं पहले ये बताइए। यस, आज हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट करे हैं बताइए। लिंक लिस्ट मैम, लिंक फर्स्ट लिंक लिस्ट, यस वेरी गुड, हमने लिंक किया लिस्ट के टाइप भी करे थे। लिंक लिस्ट हमने डन इसके अंदर किया,
लिंक लिस्ट मैंने आपको बताया 3 टाइप्स के लिंक लिस्ट है। फर्स्ट इज सिंगली, डबली एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। और सेकंड कॉन्सेप्ट हमने कौन सा किया, स्टैक। यस, स्टैक को हमने इंप्लीमेंट किया यूजिंग एरेज एंड लिंक लिस्ट। आफ्टर दैट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, ठीक है। थर्ड हमने क्या किया, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक की। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया क्यू, ठीक है, आपको मैंने बताया क्यू ऑपरेशन। अब देखो क्यू के अंदर मैंने आपको बताया एक आपका 4 टाइप का क्यू होता है, सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू। ओके, जस्ट वी हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल क्यू। हमने सिंपल क्यू का कॉन्सेप्ट आज लर्न किया है। आप जो आपके 3 आपके हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर क्यू और क्या आपका डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नहीं तो आपका बहुत ओवर हो जाएगा, है ना। अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं वो सब क्लियर हो गए? किसी को कोई भी डाउट है? एनी डाउट, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। यू हैव एनी डाउट? अभी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। कोई डाउट नहीं किसी को भी? और अच्छे मैम नल, एक डाउट था। यस मैम, जो नल एड्रेस होता है वो डेटा कैरी कर सकता है क्या? नल एड्रेस डेटा कैरी, आपका डेटा पार्ट में डेटा तो होगा ही होगा, तो आपकी नल वैल्यू होगी मैम जो उसके अंदर, आपकी नल वैल्यू के अंदर एड्रेस तो कुछ नहीं होता, बट वैल्यू तो कैरी करता है ना। वो तो किसी और एड्रेस का करता है ना मैम, वो तो लास्ट वाला जो पॉइंटर की बात कर रहे हो, लास्ट वाला जो होल्ड करता है वो अपनी वैल्यू तो कैरी करता है, ठीक है, किसी और का एड्रेस नहीं कैरी करता, ठीक है। उसका एड्रेस तो उसके नेक्स्ट में पहले वाले नोड में होता है ना, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्योंकि लिंक्ड फॉर्मेट है, ऑल द एलिमेंट्स स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर लिंक फॉर्मेट, लिंक के अकॉर्डिंगली वर्क होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए? ओके मैम। या ऊपर से चले गए? अंदर जाने चाहिए सारे कॉन्सेप्ट्स, है ना, तभी मजा आता है ना। जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हमने करे हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में विल डू मोर टॉपिक्स, बड़े भरमार, हम लोगों के बहुत सारे टॉपिक्स हैं बड़े बड़े, ओके। हम लोगों ने अभी नेक्स्ट करना है क्यू, फिर मैं आपको बताऊंगी ट्रीज, ग्राफ, सर्चिंग, सॉर्टिंग, बहुत सारी चीजें करनी है हम लोगों ने, ठीक है। That's all for today class. We'll meet on next class. ठीक है, bye bye to you all. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Bye bye.